Class 10th English medium students. So here we start today our new chapter, our history's first chapter actually. In your social science book, it's your chapter number 7. Okay, the first freedom struggle of 1857. First freedom struggle of 1857. As you all know, the struggle of 1857. Okay, 1857 की जो लड़ाई है, स्ट्रगल है, संघर्ष है हमारे भारत का, हमारे भारतीय इतिहास का, वो सभी को पता है. Okay, and in this lesson we just discuss about the first freedom struggle, the causes of the struggle, okay, the major events of the freedom struggle, the reasons for the failure of the freedom struggles, and the importance of first struggle for freedom and its features. So the freedom fighters of 1857 also we will discuss in this lesson. So first of all, what is known or what do you understand about freedom struggle? So freedom struggle is simply known that the struggle which we will do or which we do for our freedom only. And here we just discuss about the freedom struggle of our country. As you all know that India is our country, and in past years, many more past years, the India become or India face a lot of struggle for his freedom, okay, from Britishers. ब्रिटिशर्स के थ्रू हमारा जो इंडिया था वो क्या था, गुलाम बना हुआ था, और ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को, जो हमारी ये कंट्री है, ग्लोरियस इंडिया है जो हमारी, उस कंट्री को एक जो हम कहते हैं कि गोल्डन बर्ड जिसे कहा जाता था, उस कंट्री को गुलाम बनाकर रखा था. ओके, एंड फॉर हिज फ्रीडम, फॉर आवर कंट्रीज फ्रीडम, देयर आर मैनी मोर freedom fighters in past times who do or did lots of struggle for the freedom of our country. Okay, so the struggle for freedom of 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in the history of India. That means in the history of India, the freedom struggle of 1857 is the glorious and revolutionary struggle. That means एक क्रांतिकारी और glorious यानी महान एक struggle था, एक संघर्ष था. Okay, and the revolution of 1857 was the first armed revolution. That means जो 1857 की जो क्रांति थी वो पहली बार आम यानी जो आपके औजारों की या ये कह लो कि हथियारों की क्रांति थी, जिसमें कि नॉट हथियारों का इस्तेमाल करते हुए संघर्ष किया गया ब्रिटिश सरकार के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. ओके, एंड इन दिस स्ट्रगल रिवॉल्यूशन वाज सो वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल. ओके, और इस स्ट्रगल में जो क्रांति थी वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, ठीक है ना, और उसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया था. ठीक है, एंड जो इंडिया की कीपिंग नेशनल प्रॉब्लम्स थी, ओके, सेंटर एज में जो मतलब नॉर्मली ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, है ना, उसकी वजह से जो जितने भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी कहना चाहिए कि सफरिंग्स थी इंडियन पीपल के लिए, उन सब को दूर करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनीज के रूल को चैलेंज करने के लिए रिवॉल्यूशनल एक्ट जो अपना स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल 1857, उसको किया गया था. एंड दिस स्ट्रगल वाज अ नेशनल वाइड, ओके, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल, एंड this struggle was for putting up to end to the British rule. और ये स्ट्रगल क्यों मेनली किया गया था, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश एम्पायर था, उसके रूल्स को, उसके रेगुलेशंस को, उसके लॉज को टोटली ख़त्म करने के लिए ये रिवॉल्यूशन जो था हमारा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857 वो किया गया था. ओके, नाउ द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857. So
In the year 1857, the common man in India, soldiers, the rulers of small states, and landlords participated in the struggle against the foreign rule. That means the each and every person related to India, each and every Indian person, man of India, soldiers, the rulers, which were the rulers of the small states and all, the landlords, okay, and the big businessmen, all over the countries, all over the Indian people of the country participated in the struggle, okay, against the foreign rule. फॉरेन रूल के अगेंस्ट सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ओके. एंड द इवेंट्स विच आर 1857 वर द फर्स्ट स्पार्क विच काइंडल द फ्रीडम स्ट्रगल. ये जो 1857 का स्ट्रगल था, ये एक तरह से पहली चिंगारी थी विदेशी सेना के विरुद्ध, ओके. एक पहली चिंगारी थी क्रांतिकारियों के द्वारा की गई, जिसने कि इंडियन पीपल के हार्ट्स में, इंडियन पीपल के मन में देश के लिए, देश प्रेम के लिए एक अलग फीलिंग को जनरेट किया था, ओके. एंड एज यू ऑल नो दैट फ्रॉम द लास्ट 15 centuries द यूरोपियन हैज स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड ऑल. एंड आफ्टर ट्रेड सेंटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे वर just situated, or they were just established their companies, their factories and all. And the British East India Company was established in the year 1600, okay. 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में खुद को इस्टेब्लिश किया था. और बाय द एंड ऑफ द 17th century एक्चुअली जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने पॉलिटिकल फुटहोल्ड को भी इंडिया में लेकर आए थे वो. और उन्होंने पॉलिटिकली भी मुगल्स के साथ, मुगल्स जो एम्परर्स थे उनके साथ साठ गांठ करके और इंडिया पर अपना राज कायम कर लिया था, ओके. सो 1757 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने डिफीट किया नवाब्स को, मुग़ल नवाब्स को, और मुग़लों पर भी उन्होंने अपना जो स्वामित्व था, अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित कर लिया था. और उसके बाद मेनी मोर विक्ट्रीज डन बाय द ब्रिटिश एम्पायर एंड ऑल, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल. एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवोक्ड एंगर अमंग इंडियंस, ओके. और इन सब के द्वारा जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक क्रोध की, एक गुस्से की भावना को लोगों के अंदर, इंडियन लोग जो थे, भारतीय लोग जो थे, उनके अंदर एक गुस्से की भावना को जागृत कर दिया था. और इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि डजन्स ऑफ अपराइजिंग्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो अपराइजिंग्स थी, यानी कि जो विद्रोह करने वाले लोग थे, जो ब्रिटिश इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते थे, उन लोगों की संख्या में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होने लगा, ओके. नाउ द फार्मर्स, द रूलर्स, द जमींदार्स, द सरदार्स, ऑल आर टेकिंग रिवॉल्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ब्रिटिश कंपनी. जितने भी लोग थे इंडियन, वो ब्रिटिश कंपनी से, ब्रिटिश सेना से अपना रिवॉल्ट लेना, अपना बदला लेना चाहते थे, ओके. And many types of revolts are taken by the Indian peoples against British Empire, okay. And in this result, the English soldiers were down and they crushed very much brutally. और कई बार ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो क्रश्ड हुए, वो बहुत ही बुरी तरह से उनको ख़त्म किया गया, उनको अलग किया गया इन सारे संघर्षों के दौरान, इन सारे रिवॉल्ट्स के दौरान, ओके. बट आई मीन टू से, और कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रगल जो था, इस स्ट्रगल ने धीरे धीरे ब्रिटिश जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा 1857 का अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर और अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, इसने धीरे धीरे इंडियन पीपल, चाहे वो छोटे तबके के लोग हों, चाहे वो हायर सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो वर्किंग लोग हों, चाहे वो सेल्फ बिजनेस पर्सनस हों, जो भी हों, उन सब के अंदर ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट फीलिंग्स को जनरेट किया था. और ये जनरेट
कॉन्फ्लिक्टेड जो फीलिंग्स थी, जो कि अगेंस्ट थी ब्रिटिश रूल के, धीरे धीरे यही एक कॉन्फ्लिक्ट का या एक स्ट्रगल का रूप ले रही थी. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर्स टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फ्रीडम struggle of 1857. Okay, the background of the first freedom struggle we just discussed, and in our next video we just discuss about the causes of the first struggle of freedom. Okay, so just learn it and read it carefully, and the remaining part or the remaining points we will discuss in our next video.